Should we start? So, dear teachers, like we were talking about the values, extra. So, dear teachers, I have a mic in my hand now. There is a story behind this mic. You know, like we talk about the values, healthy habits, lack of parental involvement. The lack of parental involvement is somewhat solved, but we have to make efforts for that. We have to connect with the parents, especially the mother teachers. You have to create bonding with the parents, which is very, very important. And when you talk about like working parents' excuses, it is inevitable. They are Teflon coated. They are Teflon coated. आप पेरेंट्स को कंडीशन कर सकते हो, काउंसिल कर सकते हो, लेकिन the problem is that the economical growth in the country is very different. So both parents are working to make both hands better. So they are more involved in their working, so they don't have much time for their kids. That's why parents, they are the first teachers, but virtually we are the first teachers as well, and second teachers as well. Now, I'm talking about the mic. When I used to be a student, I was not able to, address the morning assembly. I fumble. Is there sports sir here? Would you like to come here with me? A big round of applause for sports sir. So my village is just stone throw away distance from this place, Nadu Mazra. So at that time in my school, there was a sports teacher. He was Mr. Hansraj. And Mr. Hansraj, 24/7, is possessed by Patiala. Okay? And I request Mukul sir to join me. And we have one Hindi teacher. He was Mr. Prem. Prem sir used to teach Hindi. प्लीज आज मुझे अपने एरिया में आया तो याद आ गई उनकी. तो आप मेरे लिए हंसराज सर हो और आप प्रेम सर हो. In our time when we were students, we were first slapped. Then they asked, go and bring a glass of water. Nowadays it's not there. If it happens, it's a breaking news. खुंखार अध्यापक. और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए शाम को 4-5 लोग वेले बैठे होंगे टीवी पे. उनको कोई काम नहीं होता. तो one of our teacher is retired. In the morning assembly, nowadays when a teacher is retired, he doesn't look like a teacher, he looks like a boy. तुसी retire हो गए लगता था है नहीं. And his parties is in the big hotel. Now at that time, that kind of celebration is very rare, maybe in the metropolitan city. So in the morning assembly in the government school, that teacher who used to be retired, उनको बुलाते थे, उसके गले में हार वार डाल के साइकिल पे बिठा के छोड़ आते थे कि जी ये रिटायर हो गया. तो एंटरटेनमेंट क्या होता था कि कोई भी बच्चा पकड़ के बुलाया रेंडमली कि चल तो गाना सुना. अब किसी ने एक शरारत की, उसने मेरा नाम ले दिया कि भी मेरी पिटाई हो कि सर हंसराज सर को बोला कि ये गाना गाता है. तो
what happened? I was given 2 slaps. Maths teacher are there. 2 slaps. He said, "Stop." Yes, चल गाना गा. कैसा लगेगा कि किसी के 2 लगे हो और उसके हाथ में माइक हो, और I am sandwiched between Hansala sir and Prem sir. Both are the best friends, like Devdas and चुन्नी भाई, चुन्नी बाबू. अरे संडे को ठेका खुलता था तो दोनों सुबह खोलते थे, शाम को बंद करवा के भी वही आता था. तो सर has given me the punishment. He said, "Go and sing a song." मैंने कहा ठीक है सर, 2 पढ़े नहीं, 2 और पढ़ जाएंगे. मैंने पकड़ा माइक. Should I do practically? कैसे हुआ? Allowed? मैंने माइक पकड़ा ऐसे, मैंने बोला, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ. आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ. अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ. आपके अनुरोध पे मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कवि क्यों रोता है. मत पूछो औरों के दुख में, ये प्रेम कवि क्यों रोता है. बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है. दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूँ. आपके अनुरोध पे. तो ऐसे मैंने गाना गा दिया जी. थैंक यू. अब हंसराज सर स्पोर्ट्स वाले उस वक्त, आपको पता है हंसराज सर सब सब्जेक्ट जानते हैं. जिस सब्जेक्ट को जानना होता है उसके टीचर से बात कर लेते हैं. तो प्रेम को बुलाया, कहता यार प्रेम इधर आ, यार अनुरोध क्या होता है. कहता मास्टर जी अनुरोध का मतलब है रिक्वेस्ट. कहता बाहर बुलाए नो. कहता तेरे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा. ही अगेन गिव मी 2. 2 पहले पढ़े थे. अब प्रेम सर को भी थोड़ी उतरी तो बोलता है तू क्या बोलता है, प्रेम कभी रोता है. 2 2 + 4 अर्थमेटिक मीन स्टार्ट. कहते पर तूने गाना अच्छा गाया. अच्छा गाया. कहते एक और हो जाए पर मेरे ऊपर ना हो. अब कहते ना, मैं रोया परदेश में, मैं रोया परदेश में. जो लोग हमारे पंजाब के कनाडा जाते हैं, अगर पंजाब से कनाडा की तरफ नदी बहे तो मछली से ज्यादा हम लोग होंगे. तो कहते मैं रोया परदेश में, भीगा मां का प्यार, आंखों भर आकाश है. टेक्निकली देखो, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार. सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम. सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम. मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग श्याम. जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम. नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम. जैसी संगत साधिए, पॉइंट टू बी नोटेड, जैसी संगत साधिए वैसा होगा रूप. जैसे आम के पेड़ से मिलकर मीठी हो गई धूप. चाहे गीता वाचिए, चाहे पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान. हाउस इट. तो ये जैसी संगत साधिए वैसा होगा रूप. केमिस्ट्री टीचर C2H5OH इथाइल अल्कोहल के फ्यूम्स मेरे को आए. इथानॉल इधर से आ गया. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन एक IUPAC नेम, एक कॉमन नेम है.
जैसी संगत साधी है वैसा होगा रूप। सर ने फिर 4 लगा दिए तो मेरे को फिर से गाना पड़ा। मैंने बोला, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूं, पिलाई गई है जहां बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको। इधर आ जा, बाहर तेनों राह मैं दिखाना है। फिर सर ने ठोक दिए कि तो फिर तूने मेरे ऊपर गाया। मैं कहा मास्टर जी, हम लोग मास्टर जी बोलते थे तब, आजकल तो सर एंड यू नो सर, अमेरिका जाओ तो मिस्टर। सो मैंने कहा सर हुन नहीं मैं गाऊंगा आपके ऊपर, प्लीज बस लास्ट चांस, मारना ना है। मैंने माइक पकड़ के बोला, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली, ओ हंसनी। अब आखिर में क्लाइमेक्स है, आजा तेरी राह में भटक रहा रे तेरा हंसा। सर के हाथ में डंडा था, वहीं से प्रोजेक्टाइल पाथ y इक्वल टू x n थीटा हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा मारा, मैं भागा। बट आई एम ग्रेटफुल टू माय टीचर्स। हंसराज सर की वाइफ प्यार से उनको हंसा बोलती थी और सर अपनी वाइफ को प्यार से ओ हंसनी। सो बाय मिस्टेक इट हैपन के सारे गाने उनके ऊपर बन गए, बट वो टीचर मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। अगर वो सर ना होते तो मैं आज यहाँ 426 वर्कशॉप ना कर रहा होता। जिसको टीचर बोलते हैं कि वर्कशॉप लेनी है तो विपिन सर से लेनी है, वरना किसी से नहीं लेनी है। बोलो यस, थैंक यू। अब एक सर बोलते, सर मुझे माइक फोबिया बहुत है, पता नहीं मुझे लग रहा है वो मेरी रेल बना रहे हैं, आजा जल्दी भज के। Thank you. Would you like to sing a song? No, sir, I can't. जे तुसी गाना नहीं ना गा सकते, if you can speak, you can sing. If you can walk, you can dance. Dance like again. Okay. Just come. कहंदे दस मेरे आ दिल बरावे तुम बड़े अर्श दा तारा, दस मेरे आ दिल बरा। Hand over to you. Wait, Dilbara. Here is you. So he sings. I just got to know. पर्ची निकली है, आपकी पर्ची निकली है सीताराम जी, जय सीताराम। कहिए प्लीज, डू समथिंग सर। वेट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ Song ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਹਰ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਨ ਜੇ ਮਾਪੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਨ ਜੇ ਮਾਪੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਬਹਿੰਦੇ, ਟੀਵੀ ਕਰਕੇ ਆਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਪੂ ਕਦੇ ਜੇ ਝਿੜਕੇ ਮਾਂ ਛਡਾ ਦੇਂਦੀ, ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮੰਦਾ ਸਭ ਸਮਝਾ ਦੇਂਦੀ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਦੇਂਦੀ, ਤਰਸੋਂਗੀ ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ,
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਜੇ ਮਾਪੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਜੇ ਮਾਪੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਸ ਐਂ ਇਕਾਂਤ ਚ ਬੈਠਿਆ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ 17 ਚ ਕਨਸਰਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸੈਡ ਜਿਹਾ Song, ਆਪਣਾ ਬੀਟ Song ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਾਈਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਲਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਲਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਗਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨੀ ਜਾਨ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਪੱਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਫੱਬਦਾ। ਉਹ ਪੱਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਫੱਬਦਾ। ਉਹ ਪੱਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਪੱਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਫੱਬਦਾ। ਉਹ ਪੱਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਫੱਬਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਨ Song ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਗਾਤਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾ। ਤਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਬਾਈ ਦਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੀਂ ਚ ਆ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਸੀਨਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਦੁਪੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਰ ਉਹ ਫੰਬਲ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਰੈਂਟ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਈਓ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਈ ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਇਹ ਯਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਨਦਾ ਏ ਪੱਗ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਟੌਰ ਕੱਢਦਾ। ਪੱਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਫੱਬਦਾ। ਉਹ ਪੱਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਫੱਬਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ सर यू वो पंजाबी बोलना ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ। अलाउड ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ वो ਹੈ। समझी होती जाती जब बेबे कहती रोटी खानी नहीं भुगना पएगा ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ when I went to Punjab University ਮੇਰੇ ਭੁੰਡ ਲੜ ਗਿਆ what is this you know। ਤਬ ਆਪਾਂ I'll tell you one thing sir ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ
ਵੱਡਾ ਜੱਟ ਯਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਥਾਰ, ਕੱਢੋ ਹਥਿਆਰ, ਨਿਕਲੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ। What is this? This is not our culture. ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏ ਸ਼ੇਰ ਜੱਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਾਬ ਲੈ ਬੈਠਾ। Shiv Batalvi, right, my favorite, all time favorite. I'm proud to teach his kids. Madam Arna Batalvi, she is working in Punjab University now, retired. Is both daughter and son is my students. So logic क्या है? Logic ये है कि पग नाल सोनिए मुंडा फबदा। ਹਾਂਜੀ, कोई सोनी ਲਈ भी गाना लिखे ਸੋਹਣੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। है? ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪੰਛੀ ਪੁੱਲ ਉਡਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਾ ਕੇ ਜਦ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾਲੇ ਸਾਥੋਂ ਸੰਗਦੀ ਏ, ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ। Wow, amazing, amazing. Your name is sir? ਸਰ ਉਦਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿੰਗਰ ARV ਸਿੰਘ। Wow. See what a melodious voice. मैं भी ठीक है। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। हंसदा, just joking. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। मैं दसदा ਤੁਹਾਨੂੰ, I used to record daily 2-3 songs and put it on the status. Somebody says you are national awardee physics teacher. तू गाना गांदा चंगा लगदा है? मैं कहा तू ना सुन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣਾ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਸੁਣ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਿ MD बोले, प्रिंसिपल बोले, गर्दन मारो बाहर आके करना वही है जो ਅਸੀਂ करना है। Secondly, a teacher is a totality in a personality. A teacher is a totality in a personality. He is everything. Everything. He is a singer, he is a teacher. कभी बच्चों को, और टीचर पता कौन है? जिन्हें तो मैं अपनी गल करदा है, इट्स रियलिटी। एक बच्चे ने मेरी क्लास दे विच लड़की दे चौक मारिया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ y = kx² equation of parabola whenever you throw anybody under the influence of the gravity law, and it is a projectile anything which flies off its own unaided by an external agency। मैं कहा आजा बाहर निकल के, जिवें ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ है ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਈ, ਕੁੱਟਿਆ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬਾਈਸੈਪਸ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਗੋ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਊ ਯੂ ਡੇਅਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੀ ਨੋਜ਼ ਮੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਟ ਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਫਾਈਨ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਗਾ ਕਿ ਵਿਪਨ ਸਰ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਚੌਕ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਟਾਈਮਸ students create nuisance, they understand only one language। तो बाद च बच्चा हो तो कहे कि ठीक है मैम आपने मुझे पनिश किया but I deserve it, I'm sorry। That is your real character of a teacher which is lying in the hearts of the students। So
बच्चा वही है जो आपको बोले कि आपने डांटा तो अच्छा किया। मैं एक बात बोलता हूं, पेरेंट्स, कोई भी एक टीचर जिसके आप ट्रस्ट करते हो उसको एफिडेविट दे दो। क्या दे दो? एफिडेविट दे दो कि ये बच्चा आपको छोड़ दिया, आप जैसे मर्जी यूज करो, हम कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर नहीं जाएंगे। मैं गारंटी देना है वो बंदा बन जाएगा। टीचर्स की पावर ही नहीं है, क्योंकि कुछ टीचर्स ने कॉर्पोरल पनिशमेंट का मिसयूज किया तो ये बैन लगा। अदरवाइज तो मेरा अभी भी दांत टूटा हुआ है। मेरी मदर ने मॉर्निंग असेंबली में मेरे को पीटा था, पढ़ाई के पीछे नहीं। मास्टर जी ने मेरे को मारा, बोलता आई पनिश यू, इसका फ्यूचर टेंस क्या है? मैं कहता तेरा स्कूटर पंचर करूंगा। यू गॉट इट? बिकॉज हर बच्चे के अंदर एक फीलिंग है। बच्चा क्या कहता है, मेरी बेइज्जती कर दी। छोटा बच्चा है ना जो, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। आई हैड गॉट अ चांस टू डिलीवर वन लेक्चर चाइना बॉर्डर, नियर चाइना बॉर्डर। तो आई गॉट अ चांस, मुझे छोटे बच्चों को मिलने का मन किया, तो मैंने कहा मैंने छोटे बच्चों को मिलना, नर्सरी एलकेजी। तो प्रिंसिपल से इसके सर प्लीज डोंट गो, बच्चे यू नो दे आर जस्ट। मैं कहा मैम आई अंडरस्टैंड, आई जस्ट वांट टू सी योर दैट विंग, हाउ द टीचर इज टीचिंग। जैसे ही मैं गया तो वो टीचर के पास जो बच्चा टेबल पे बैठा था वही पढ़ रहा था, बाकी इधर रबड़े मार रहे हैं, वो मार रहे हैं। मैं कहा शी इज द बेस्ट टीचर। कहती आप कैसे कहते हो? मैं कहा इनको कितने साल हो गए? कहते 15 साल। मैं कहा शी इज द बेस्ट टीचर। कहती यस। क्यों? बच्चा, छोटा बच्चे को हम नहीं कर सकते टेम, वही आएगा जो आपके पास टेबल पे आके पढ़ रहा है। तो एक लड़का था छोटा सा, उसके दांत चेंज होते हैं ना जब एज में, तो उसके दांत टूटे हुए थे। मैंने बोला तुम्हारे दांत का आगे छुआ रह गया, यही बोलते हैं नॉर्थ में। मैं कहा अच्छा तेरा नाम क्या? कहता गणेश। मैं कहा गणेश जिसके पापा शिव जी हैं? कहता नहीं नहीं मेरे पापा का नाम है सुरेंद्र सिंह नेगी। मैंने कहा चल वो भी शिव जी हैं, हम सब लोग उसी के हैं डेरिवेटिव्स। तो मैं आई टुक दैट वर्कशॉप ऑन सैटरडे एंड in Patiala I got a call in the daytime on Monday. तो प्रिंसिपल सेड के सर आपसे कोई बात करना चाहता है। मैंने बोला क्या? कहते बात करो फोन पे। वो बंदा मेरे को बोलता है तू क्या सिखाओगे और मेरे बच्चे को? मैं क्या, मैं शिव जी हूं? मैंने कहा यार हम सब लोग वी आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ गॉड। ओ एलिमेंट छड़, तू ये बता मेरे को, तो जब आया था टेम्परेचर क्या था? ही इज फ्रॉम विलेज तो स्पीकिंग लाइक दैट। मैं क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री। और सुबह 5 बजे टेम्परेचर क्या है? मैंने कहा होगा माइनस में। ना मेरे गले में सांप है। मैं कहा नहीं तो। कहता सोमवार है तो मैं तेरे को बात करने आ रहा हूं। ये सुबह 5 बजे उठ के आया, ठंडा जग पानी का मेरे सिर पे डाल दिया, मैं सोया पड़ा था। कहता शिव जी पापा जल चढ़ा रहा हूं। जो छोटे बच्चे हैं वो हर चीज को पिक करते हैं। आप कैसे बात कर रहे हो, आपकी ड्रेस सेंस क्या है। आपको फैक्ट बताओ, जो छोटे बच्चे हैं वो प्रिया मैम बन के घर जाके पढ़ाएंगे। मतलब यस प्लीज कम मैम। एक्चुअली why I record because my all workshops are on the internet. कोई माइका लाल रिसोर्स पर्सन अपनी वर्कशॉप को कभी रिकॉर्ड करके डालता नहीं, मैं डालता हूं। पूछो क्यों? Because let the people know what we are doing. All 426 this will also be uploaded tonight on the Vipin Sharma Physics channel. उसमें फिजिक्स कम है, वर्कशॉप ज्यादा होगी। अरे अगर सारी फिजिक्स ही पढ़ा दूंगा फिर ऐसे कौन पढ़ेगा? अपने पेट पे लात थोड़ी मारनी है, ठीक? तो मेरे को एक बंदा बोलता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता पब्लिशर का, उस कहता विपिन सर आपकी वर्कशॉप बड़ी जॉवियल सी होती है। मैं क्या एरोगेंट बंदा मेरी वर्कशॉप नहीं अटेंड कर सकता, जिसमें ਹੁੰਦਾ ना ऐसे अपा जी ਤੁਸੀਂ नलका देखा टूटी वाला हैंड पंप नहीं, वो तो आजकल दिखते नहीं। टूटी वाले नलके ਦੇ ਵਿੱਚ यू माइट हैव सीन के आवाज आंदी और ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ मोबाइल तो होना ही होना है। की है टैंकी क्यों नहीं चलाई, सबमर्सिबल क्यों नहीं ऑन किया? बिकॉज इन सम एरियाज सबमर्सिबल इज देयर, राइट? पानी नहीं है उसमें हवा है। हवा क्या है? ईगो।
पानी क्या है? नॉलेज। जब आप में पानी होगा तो हवा नहीं होगी, और जब हवा होगी तो पानी नहीं होगा। ये मैंने कहां से सीखा? अकाल एकेडमी। मैंने सारी अकाल एकेडमीज को किया, छप्पड़ छिड़ी भी किया था। वहां लिखा था कम टू लर्न, गो ईगोलेस। हमारे टीचर्स में ना एक एस्ट्रोलॉजी में एक प्लैनेट है जुपिटर, वो सबका बड़ा स्ट्रांग होता है। गुरु गुरु बोलता है, और राजकुमार एक्टर ने तो जानी नौकरी नहीं करेंगे, ये ले रिजाइन। तो टीचर भी ऐसी करता है। अगर टीचर को कुछ डांटा ना, तो वो टीचर को गुस्सा आया होता है, वो कंप्यूटर रूम में जाके कागज नहीं, एक व्हाइट कागज एक व्हाइट कागज दे। मैम क्या हुआ, बाद में बात करेंगे। मैम आप गुस्से कब, व्हाइट दे। तो वो जाके वहां लिखा, टू द प्रिंसिपल आई एम रिजाइनिंग विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे, ठा साइन। दिखे कि मैडम सुसाइड नोट तो नहीं लिख रही? नहीं, वो जाके दे दिया प्रिंसिपल मैम ये सर को। तो उसके बाद छोटे बच्चे मिले, हेलो बेटा, बस मैं कल से नहीं आऊंगी, बाय बाय बाय। जैसे सुधीर चौधरी ने आज तक छोड़ा ना, बड़ा इमोशनल होके। उसके बाद गेट के पर गए, भैया बस मेरी आखिरी एग्जिट है। मैडम क्या हुआ? एंड सो ऑन, मल्टीपल थिंग्स हैपेंस। कोई बात नहीं मैम, वी आर यूज्ड टू दिस। सो डियर टीचर्स, व्हाट आई एम सेइंग इज, फिर वो स्कूल में कहते हैं दोस्त के गले मिलता है, उसके कंधे पे सर रख के किसी दूसरे से फोन पे बात कर रहा होता है, और तीसरा दिमाग में घूम रहा होता है, चौथे की कॉल इन वेटिंग होती है। ये रियलिटी है। इसी तरह से जो टीचर है ना, वो ऑलरेडी किसी स्कूल में ज्वाइन करते ही मल्टीपल स्कूल्स के अंदर उसकी बात चल रही होती है कि अच्छा तेरे स्कूल से बेटर कुछ 10 फालतू मिलेंगे तो मैं आ जाऊंगा। अब वो नेक्स्ट डे किसी और स्कूल में चले गए, उसके बाद उनको फील होता है कि यहां तो उससे भी ज्यादा पॉलिटिक्स है। फिर वो बोलेंगे, हेलो प्रिया मैम, यस, क्या मेरे को बच्चे याद करते हैं? क्या फ्रेंड्स को याद करता है? एवरीबॉडी इज सेल्फिश, यू नो। जब तक मैं वहां थी तब तक तो सब बोलते थे आप जैसा आप कोई नहीं है, अब कोई याद नहीं करता। प्रिंसिपल ने कुछ बोला, मींस दैट एक वो बॉन्डिंग है ना, वो हमें खींचती है। तो रियलिटी ये है कि टीचर के बड़े दर्द हैं, हमारी सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं। गवर्नमेंट की बात नहीं करता, प्राइवेट टीचर की सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं। तभी तो बोलता हूं यूट्यूब चैनल बनाओ, उसके अंदर अपने सारे सब्जेक्ट्स डाल दो, कल को मोनेटाइज हो जाएगा, पेंशन तो मिलेगी। आप लोग सोचते नहीं हो। 11:59 पे टॉप के भारत के सबसे अमीर आदमी की कंपनी पे फोन पे बात कर रहे हैं, 12 बजे कॉल करो, फोन रिचार्ज करो, थोड़ी सुविधा बंद कर देती गई है। क्या यहां होता है कि आपके पास बच्चा पढ़ने आ रहा है, उसने 1 तारीख को फीस नहीं दी तो उसकी एंट्री बंद होगी? वो आता रहता है, 2 महीने भी बाद भी नहीं चलता रहता है। तो वी आर रियली सर्विंग द नेशन। आजकल बड़े आते हैं सोशल मीडिया में, प्राइवेट स्कूल लुट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक स्कूल बंद कर दो, आप एक स्कूल बंद कर दो, 2 जेलें खोलनी पड़ेंगी, और 2 स्कूल बंद कर दो, 4 जेलें खोलनी पड़ेंगी। प्राइवेट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, दे आर रियली डूइंग द सर्विस टू द नेशन। और मेजॉरिटी, बुरा ना मानना, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं हमारे पास? सो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि हमें फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना होगा, हमें अपनी सोशल सिक्योरिटी बनानी होगी। आई एम नॉट अगेंस्ट ट्यूशंस, अगर पढ़ते हैं तो पढ़ा लेना चाहिए, बोलो मत किसी को कि हमारे पास आओ, बिकॉज हमारी सोशल सिक्योरिटी नहीं है डियर टीचर्स। ये इफेक्टिव टीचिंग वर्कशॉप्स, ये वैल्यू, ये सब कुछ तभी अच्छा लगता है जब पेट्रोल फुल हो और वॉलेट फुल हो। अदरवाइज तो बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, लिखो चलो। और अगर हमारा मैसेज आया हुआ है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, आपको मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे डैम किया, रियलिटी है कि हमें सोशली स्ट्रांग होना होगा। 20% तो अपने ऊपर खर्च किया करो। मैं बोलता हूं हर महीने, हर 15 दिन बाद एक नया सूट होना चाहिए। और जब आप क्लास में जाओ, सलमान खान की क्या एंट्री होती है जो आपकी एंट्री होनी चाहिए, और कुंडी बंद करके बच्चों के साथ 5 मिनट इंटरेक्ट करो। अगर हो सकता है तो अपनी एक रील बनाओ,
स्मार्ट बोर्ड पे पेन ड्राइव में लगा के, देखो मैंने आपके लिए ये सिखाया, ये किया, ये किया, ये किया। क्या मुझे कोई यहां कैलेंडर दिखा सकता है? कैलेंडर फ्रॉम गूगल और पेन ड्राइव से। सर एक कैलेंडर डिस्प्ले करना है, कोई भी कैलेंडर, गूगल पे जाके कैलेंडर डालना आ जाएगा, टेंशन मत लो आप। इंटरनेट, स्कूल में कोई कैलेंडर पढ़ा है? दिस स्कूल इज विदाउट कैलेंडर, हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं फोन वाला नहीं मैम, नहीं प्लीज प्लीज, वो ले आ रहे, ला रहे हैं। हाँ जी, आपको हम जाना नहीं देना चाहते हैं। हाँ यस, बिकॉज शी इज टू सीनियर टू अस। मैम आई रिस्पेक्ट टीचर्स बिकॉज, बोलो नेवर, जोर से बोलो, नेवर argue with elders because they have number of reasons to be right. to be अपने बड़ों से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए जो बोलते हैं। एंड आपकी शादी तो नहीं हुई? जिनकी शादी हुई है वो एल्डर के साथ वाइफ लगा सकते हैं। ओके, सो यस मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे, भूल गए? नहीं याद है। यस, आई थिंक सर का जो नटशेल मैंने निकाला है, अकॉर्डिंग टू सर्स टिल नाउ व्हाट सर taught us, a teacher has to be versatile यस, because you have to impress the kids, whether they are of class 1, whether they are of nursery wing, whether they are of senior wing. If a student is impressed by the teacher, the student will automatically start the learning. she has given me endorphin. Anybody bio teacher here? Endorphin actually ना साइंस वाले कम ही आते हैं, वो पता कैसे? well what's the use of going there, it's a time waste। हाँ नहीं होता है, मैं एक्चुअली ऐसी की तैसी, मैं कुछ नहीं बोल रहा ऐसा। ओके ओके, फिर ठीक है, फिर ठीक है। नहीं साइंस वाले को बोलो tomorrow is workshop, well I don't want to come, it's time waste। आ गया जी, रहने दो सर, रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, थोड़ा सा डाटा निकल जाना है। सो लाइक आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। गॉड ब्लेस यू, वाहिगुरु ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ सतिंदर सरताज जैसे बनो, ठीक है? बेंच मार्क है। देखो दिस इज ए वन कैलेंडर वी हैव विद अस, राइट? ये रहा, चलो मैम, इवन यू कैन सी इन योर मोबाइल, मैम इन वी कॉल ईच नंबर एज ए एलिमेंट, डिजिट, राइट? And can you pin up the mic here? Right. Yes, give it to me. कपड़े वाली चुंडी वाला काम है, मैं दस दफा I think right, I got it. Yes, हाँ ma'am. जी, sir. God bless you. Come here. See, this is a calendar, an ordinary calendar. So when you look at calendar, आपके दिमाग में क्या आता है? Yes. सब आप ये भी देखो, सेकंड सैटरडे से पहले फ्राइडे वाले दिन कोई छुट्टी तो नहीं है? Yes. बिल्कुल बिल्कुल प्लान। अच्छा, मतलब क्या? फ्राइडे, सैटरडे, संडे आउट, ठीक है? मार्को नहीं मैम, मंडे पे तो क्या होता है? मंडे तो छुट्टी नहीं है, उधर से फोन करेंगे, हेलो प्रिंसिपल मैम, हमने यहाँ आए हैं, यहाँ पर कुछ लैंड स्लाइड, उसका फोन ऑफ, नेट कनेक्शन, इंटरनेट बंद हो गया। इंटरनेट के फोन ही बंद, क्यों? जिसके साथ कनेक्टेड है वो साथ में, हमें क्या लेना, राइट? उसके बाद और क्या देखते हैं इसमें? स्पेशल यस, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या होगा। ये बोलता राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। यस मैम। तो लाइक हम लोग छुट्टियां देखते हैं
और थोड़े से टिपिकल बंदे हैं, वो कहते हैं सिलेंडर लगाया। अब आजकल तो गैस आ रही है, खैर सभी के। पहले वाली बात, सिलेंडर लगाया था 3 तारीख को, 16 दिन में खत्म कर दिया, दिन साग बनया, राइट। कई लोग उस पर डालते हैं दूध, कितने मिसिंग है पैकेट या व्हाटएवर इट इज, या फिर गोल चक्कर के आज है 12 अप्रैल से आपका क्या वर्कशॉप जाना पड़ेगा, एंड सो मेनी थिंग्स। Yes, sir. यही देखते हैं ना कैलेंडर पे, बट टुडेस कैलेंडर इज वेरी डिफरेंट मैम। ईच डिजिट इज एलिमेंट, एंड हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, मींस 2 by 2 मैट्रिक्स। April, जो आपका मन करे, कोई भी महीना आप चुन लो, कोई भी जो आपको right? फेवरेट हाँ लगे। जी, yes. Which month you wish? April. Okay, done. Current month. But I'm not making April Fool, right? Okay. You take digits 1 to 8, 9, 2 by 2. Cross कीजिए, 1 plus 9, 10. very intelligent. अगर ये ट्यूशन स्टूडेंट मेरे पास है, मैं बोलूंगा वेरी इंटेलिजेंट। 2 plus 8, 10. नर्वस मत हो मैम, रिलैक्स हो Okay, I'm जाओ। relaxed. अच्छा, अब आप कहीं से भी कोई और ऐसे 2 by 2 सेलेक्ट करो, कोई भी। Okay. 5 into 13. कहाँ जी? 5? नहीं, I was अच्छा चलो, जहां भी आप। March 5. 6, 12, 13. 13 plus 5, 18. 5 plus 6, नहीं 12 plus 6, 18. तो क्रॉस करेंगे ना आप, तो सम सेम आएगा। Okay. आप 3 by 3 सेलेक्ट करो, 3 by 3 कोई भी कर लो। 3 by 3, like 3, 9, हाँ। and 15. नहीं मैम, 3, 10, 17। Okay. हाँ 3, 10, 13, and 17, 30. नहीं मैम, 3, 10, 17, 3, 4, 5, 17, 18, 19। Okay. 3 plus 19, 22. 20. 17 plus 5, 22. इंटरेस्टिंग। Yes, yeah. अब आप एक कोई भी एक पूरी की पूरी ये ले लीजिए, इसको बोलते हैं कॉलम। 1 plus 29, 30. एवरेज क्या आया? 15, right? 8 plus 22, एवरेज क्या आया? 15, right? Oh, तो great. 15 क्या है? दोनों के बीच में है। हाँ, yeah. 1, ठीक है ना। अब देखो कितने डिजिट्स हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स है। 15 into 5, 75। तो 29 plus 22, 51। 51 plus 10, 61 plus 5, 66. हाँ 66 68, हाँ. 74 plus 1, 75. Great. So we need teacher like you, sir, here. she says that I need teacher like you, sir. Madam, Hey, मेरे- you are teaching, like it's really great. मेरे 2.5 लाख It's रुपए great. महीने का खर्चा कोई नहीं देता। और बताएं आपको इंटरेस्टिंग चीज। जी। गॉड ब्लेस यू, Thank you, sir. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। Thank you. Sir, next time when I will come na, we will share the common getup. So, like dear teachers, this is how you can depict calendar in a very, interesting way. When you talk about the maths, you know, maths is such an interesting subject. I've told you that if you're not good in maths, you're not good even in driving, you're not good even in singing. Even music sir is sitting there, very senior music sir is sitting there. तो वो भी maths के help से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Am I right, sir? 3 ताल and all, right? Sir, we will invite you. We will invite you, sir. Sir, just come. In the meanwhile, I tell something. I was told by maths teacher that come and let us go and take pizza. Correct? तो हम लोग डोमिनोज पे चले गए, तो मेरे टीचर ने बोला बेटा इसका रेडियस है z, पिज्जा का रेडियस क्या है? z। पिज्जा का थिकनेस है a, पिज्जा का थिकनेस क्या है? a। राइट सर, वो मैंने फिलर किया, थोड़ा एवेंट कर देता हूं। तो मैडम मैथ्स के बोलते कि बेटा इसका वॉल्यूम क्या है? पाई जेड स्क्वायर इंटू ए। पाई जेड स्क्वायर, जेड गलत बोल रहा हूं, पाई जी स्क्वायर
It's not Z, you know, some of the students say Z, okay, pi Z square A. मैंने बोला मैम मेरे दिमाग में एक आइडिया है क्या? मैम आपने क्या बोला? पाई Z into A. So this is how you can create interest in mathematics. बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं, पर टाइम कम है. सबसे पहले ऑनरेबल सर एंड सर आप एंड ऑनरेबल मैम, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ. प्लीज मैम सर दोनों इंट्रोड्यूस कीजिए. मैं सर ने बोला कि मैं तब जाऊंगा जब आप जाएंगे. सर प्लीज. माई सेल्फ वीरेंद्र चोपड़ा, म्यूजिक टीचर, एक्सिप 65 and 125. यू आर म्यूजिक टीचर वीके चोपड़ा. वाओ ग्रेट सर, ग्रेट. Instrumental teacher and vocal teacher. Please, Instruments. please be in the frame, ma'am. So you are instrumental and Yeah, you I are am vocal. vocal vocalist. Yes, ma'am. आज का जो संगीत है, उसकी जो दशा है, उसके पर शनि की दशा है. है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल कह सही रहे है. हो. ठीक है. और वो संगीत तो खत्म हो गया. Right. बिल्कुल. और आज की डेट में तो ये है कि आप कुछ भी बोल दो, इवन के जनरेटर चला दो, उस पर भी बोल दो, वो भी गाना बन जाएगा. तो सर इसके लिए कुछ भी आपके मन में पीड़ा हो शेयर कीजिए. नहीं सर, पीड़ा कुछ नहीं है. सबसे बड़ी बात है कि जो म्यूजिक है बेसिक नीड्स हैं आज जब के तक टाइम melodious में. उसमें जैसे कुछ नहीं है. सर फिजिक्स के हैं. मैं एक बात बड़ी अच्छी शेयर करूंगा. मैं अप्रिशिएट करता हूं सर को. फिजिक्स म्यूजिक इटसेल्फ कवर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. म्यूजिक सारी चीज़ों को नॉलेज रखता है. जो आदमी उसको म्यूजिक का पता लगता है, कोई भी लैंग्वेज है, फ्रेंच है, जर्मनी है, आप किसी भी देश का आदमी बैठा अगर वहाँ का कोई गाना आता है आपको, तो वो आपका एक रिश्तेदार बन जाएगा. वो कहेगा मेरे देश की भाषा जानता है. लेकिन वहाँ तक आज बच्चे को ले जाना, बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन करना, जैसे हम गुरुद्वारे में बच्चों को गुरुपुरब में ले जाते हैं, इसी तरीके से म्यूज़िक के लिए बेसिक जैसे क्लासेस होती हैं, उसके अंदर हम सीढ़ियों में लिख देते थे पहले स्कूल्स में. सारे गामा पाधा निशा 1 2 3 4 अरोही अरोही. है जी. असेंडिंग डिसेंडिंग, उससे मैथ भी हो गया और म्यूजिक भी हो गया. अब बीट के साथ वो हमारा म्यूजिक है, और सारा ताल म्यूजिक के साथ बच्चों को हम 1 2 3 जो आता है. अगर मैं मैथ की बात करूं तो हम हिंदी में कहते हैं 15 को 15 दूना 30 या 45 चौको 60 75 सिक्का 90 दाम 1.5. इस तरीके से हम मैथ करवा दें. अब क्या है कि 16 मात्रा का ताल है, जैसे 3 ताल है. हाँ, अब उसमें हमने बोलना है 1.25 का, 1.5 का, 2.5 का, पौने का पहाड़ा. कभी पढ़ाते ही नहीं बच्चों को. आप बताइए कहाँ है 1.25 का, पौने का पहाड़ा नहीं पढ़ाते सर. लोगों को यही नहीं पता पहाड़ा होता क्या है. ये टेबल्स टेबल्स जो होते हैं. अब उसमें क्या ये पता है है कि सर. छोटे बच्चों को अगर मैं कोई बोलता हूँ तबले का, तो वो हमारे पास 1.25 के हिसाब से आ जाता है. डिंग डिंग तकड़ तकड़ धाक तकड़ कत कत. अगर हम इस बोल को बोलते हैं तो वो 16 के अंदर पूरा आ जाता है. कि दैट इज आल्सो टाइमिंग. हाउ यू कैन कैलकुलेट, हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द टाइम, हाउ यू आर कैलकुलेटिंग द टाइम, दिस इज द मेन थिंग. अब आप कैलकुलेट करने के लिए जैसे इंटेंसिटी ऑफ वायर है. अगर मैं रीड की बात करूं, म्यूजिक का रीड है, आप हारमोनियम बजाते हैं, कीबोर्ड बन गया. आप सर ने बताया था कि कीबोर्ड बन गया, आवाज आती है जैसे जनरेटर की आवाज है. दैट आल्सो गिव्स अ साउंड. साउंड को पकड़ के कोई भी चीज, रैप सिंगिंग गा देते हैं, कुछ भी गा देते हैं, सब काम म्यूजिक का हो गया. आपने आप उसको पीछे भर दिया और उसको हाईलाइट कर दिया, यूट्यूब पे हो गया. लेकिन असलियत में म्यूजिक सीखने के लिए आपको साधना है, उसमें पेशेंस है, उसमें टिकाव है. वो सब चीजें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक में जाना पड़ेगा. अगर रीड की बात करता हूँ तो रीड में पूरा फिजिक्स है. मैं उसको म्यूजिक कंप्लीट फिजिक्स है. अगर मैं उसको Vibration. अगर मैं उसकी ट्यूनिंग करता हूं तो उसको कितनी Math के ट्यूनिंग साथ करता vocal, हूं, sir. कितना उसको मैं जोड़ूंगा, कितना उसमें रगड़ूंगा, तो वो स्वर पूरा आ जाएगा. तो उसकी हम ट्यूनिंग करवाते हैं. वो फिजिक्स बेस है. तो इस तरीके से सारी चीजें जो हैं हमारे को म्यूजिक सिखाता है. अगर हम बच्चे को अपने सब्जेक्ट के साथ ही इस तरीके से जोड़ देते हैं कि आप बेटा म्यूजिक के साथ कोई भी पोइट्री है, हमारे पास छोटी छोटी पोएम आती हैं छोटे बच्चों के लिए, अगर हम उस पोएम को म्यूजिक के अंदर बना देते हैं और उसमें थोड़ा सा म्यूजिक भर देते हैं तो इटसेल्फ कवर द म्यूजिक. बच्चा म्यूजिक के हिसाब से जो सीख जाता है. जैसे माँ लोरी देती है, उसको पता नहीं होता लोरी में क्या है, म्यूजिक है. जैसे कोई फोक सॉन्ग हुआ पंजाबी, उनको पता थोड़ी था कि ये विदाई का गीत है. ये तो हम आज पहचान करते हैं कि जी राग खमाज बजता है तो विदाई होती है जी. तो वो जितनी भी कणका ऊंचियाँ मैडम गाते हैं, तो जो फोक गाते हैं वो फोक का उनको नहीं पता होता था. चूल्हा फूकते हुए बुजुर्ग बोलती थी सिटनियाँ है जी, छंद लोकगीत हो है गए, जी, लोकगीत. छंद बोलते हैं, जवाई वगैरह के लिए बोलते हैं छंद प्राज्ञा आई जी, छंद नगीना है नी. इस तरीके के छंद बोलते थे पहले. अब छंद कौन बोलता है, कोई सुनता ही नहीं.
अब तो डीजे चलता है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है, इस परिस्थिति को बदलने के लिए जो अध्यापक का कार्यक्रम है वो ज़्यादा बेटर है। टीचर कैन डू इट, अब तो हर चीज फास्ट में जा रही एक है। म्यूजिक टीचर Fast, नहीं कर fast। सकता। अगर आप देखें तो म्यूजिक टीचर कहते हैं मिसलेनियस, लेकिन आप देखिए कि अगर नीचे के पायदान पे जाओ तो वो सारा कवर कर देता है। अगर आप फिजिक्स पढ़ाते हैं उसमें थोड़ा सा म्यूजिक को ऐड करते हैं, कवर होगा। अगर आप उसको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप उसको थोड़ा सा म्यूजिक के हिसाब से समझाते हैं तो वो केमिस्ट्री पक्का होगी। अगर उसको बायो पढ़ाते हैं तो बायो में उसका वोकल कॉर्ड है, उसका वॉइस कल्चर है, उसकी ईयर की हीयरिंग है, तो वो पूरी कवर हो जाती है। तो बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ें साइंस की म्यूजिक के प्रोडक्शन से समझ आती है। जैसे मैडम बताते हैं, तो मैडम एक गाना आपके सामने गाएंगे, हम सुनते आएंगे। ऐसे गाएंगे, ऐसे गाएंगे। बजाओ फिर आप प्ले करिए। मैं बजाता हूँ आपके लिए, लीजिए। इसमें नहीं, उसी पे, उसी पे। अच्छा, बोलो। ओके ओके, आई विल प्ले। बोला दीजिए। अच्छा, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट शेयर। मेरे को मत छेड़ो ना। आज आप सब लोग जितने भी एक फैमिली की तरह जुड़े हैं, और कई लोग पता क्यों नहीं बोल रहे हो, छोड़ भाई मैं नहीं बोल रहा, क्यों वो बोले कि तू क्यों इधर बैठिए। अरे सब गाएंगे जिंदगी एक सफर है सुहाना। सर भी गाएंगे। मैं आपको एक चीज लाइन बोलना चाहता हूँ जिंदगी एक सफर। सर। कई टीचर्स पता क्यों नहीं बोलते कि वो दूसरा क्या सोचेगा, तो उसमें एक लाइन है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। जिसने लोगों के बारे में सोचा, छोड़ो यार अपनी जिंदगी जियो। नो, बोलो एक चीज, जब तक है आपके पास पैसे, सब पूछेंगे आप हैं कैसे। ये ज्ञान ट्रकों के पीछे से मिलता है। और आप अगर यू आर कमिंग इन BMW एंड एवरीथिंग, यू नो, तो मेरे को एक बंदा बोलता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी स्टेट का, कहता हमारी स्टेट में ना आपको एक भी भिखारी नहीं दिखेगा। होप यू गेट इट। यस, यू आर राइट प्रिया मैम, यू आर इंटेलिजेंट, यू गॉट इट। तो कहती हमारी स्टेट में ना एक भी आपको भिखारी नहीं दिखेगा। आपके पंजाब में जाओ, शनिवारे मंगलवारे हर गाड़ी को ठोकते हैं, हमारी एल्टो को भी। मैंने कहा एक बात बोलो, तुम्हारी स्टेट में भिखारी पता क्यों नहीं है? कहते क्यों नहीं है? मेरे को कोई देता ही नहीं। राइट। ओके, सो इसलिए पंजाब, व्हेन आई टॉक अबाउट पंजाब, आई टॉक अबाउट हरियाणा आल्सो, वो भी हमारे भाई हैं, ठीक। सो हियर आर a wonderful combination of the two music joints. बोलो क्या करूं? सब गाएंगे जिंदगी एक सफर है सुहाना। हाँ वही, जिंदगी एक सफर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये सहारा, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक बात मैं कहूंगा कि अगर तलब है तो दोनों जहां से मिलता है, तलब नहीं तो किसी को भी कुछ नहीं मिलता। और जो मांगने का तरीका उस तरह मांगो, दर हजूर से बंदे को क्या नहीं मिलता। मिलता है तेरे दर से मुकद्दर से भी ज्यादा, हालांकि ये मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। क्या बात है। आपकी तबीयत ठीक है? थैंक यू।
देखिए, गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी की है इसको एक चीज और सुनाते हैं। बस हर तलबगार को मेहनत का सिला मिलता है, बुत तो क्या चीज है, ढूंढे से खुदा मिलता है। अगर इंसान के अंदर तलब है किसी भी चीज को सीखने का, अब जैसे सर आए हैं तो सर के अंदर एक वो वाइब्रेशन है, पॉजिटिविटी है, यही पॉजिटिविटी। मैं तो वहां बैठा था, सर ने कहा नहीं आप आइए आप गाइए। मैंने कहा मैडम हमारे गाएंगे, मैं तो इंस्ट्रूमेंटल का आदमी हूँ, मुझे आता नहीं कुछ भी ज़्यादा। तो मैडम का गाना सुनने के लिए यहाँ तक आए। मैडम एक सॉन्ग आपके सामने और गाएंगी, प्लीज आइए मैम, प्लीज बोलिए। कितने बार बोलिए, वॉल्यूम तो इतना ही है। मन नीवा मत तुझी। मन नीवा मत तुझी, नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती। वाह, करेक्ट। चलिए थोड़ा म्यूजिक ताल दीजिए। हाँ, लो। गजल में ताल दीजिए। रिदम दे लो जी, रिदम लो आप, ये लीजिए। ये जनरेटर वाला म्यूजिक है। नहीं पर ये नहीं चलेगा गजल में। हाँ तो यही चलेगा रिदम पे। हाँ ये तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी मिला नहीं। आप इसके बिना गाओ, इसके बिना मृदंगम में। हाँ चलिए। जिंदगी कैसे है पहेली हारे, कभी जो हंसाए कभी जो रुलाए। जिंदगी कैसे है पहेली हारे, कभी जो हंसाए कभी जो रुलाए। तुमको देखा है सर? बताओ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों हो। ये एक्चुअली मेरे को किसी रिश्तेदार ने बुलाया तो उनके बेटा हुआ था, मेरे मुंह से निकल गया कैसे हुआ, कब हुआ? कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ ओ छोड़ो ये ना सोचो, एडमिशन इन एक ही करवा दो। यस मैम। तो आप सबको एक सॉन्ग आता है, सर ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, हमें जिन चीज़ों का बहुत सारा ज़रूरत थी और नॉलेज नहीं था। एक दो लाइन बताता हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, मेरा साथ मेरा ओ हमनवा, सभी के पार्टिसिपेशन। कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा।